Davanu dik dire aram dal meri jaan کہ اس تو میری ہے امید وہ میری ہے چٹان کہ اس تو میری ہے امید وہ میری ہے چٹان وہ میری چاند اکیلا ہے وہ میری جان اکیلا ہے نجات پانگا نجات پانگا سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا خدا بنو اڑیک دیرے آرام نل میری جان کہ اس تو میری ہے امید وہ میری ہے چٹان۔ بے شک اس ہمارا خداوند ہماری امید ہے، ہماری چٹان ہے اور ہماری نجات ہے۔ ہمیں اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور زبور 107 ہمیں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنے کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کی شفقت کو یاد کرتے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند نے ہماری مصیبت میں ہماری مدد کی اور کس طرح خداوند نے ہمیں ہمارے دکھوں سے رہائی بخشی، تو ہمیں اس کی شفقت کا اظہار کرنا ہے۔ اور زبور 107 کا مصنف ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور پھر خداوند کے چھڑائے ہوئے جن کا خداوند نے فدیہ دیا ہے، جن کو خداوند نے اپنے خون کے بدلے، اپنے بیٹے برے کے خون کے بدلے خریدا ہوا ہے، جنہیں خداوند نے اپنی خاص ملکیت مقدس قوم ٹھہرایا ہے، وہ خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس کے عجائب کا بیان کریں، کیونکہ جب وہ دکھوں میں اسے پکارتے ہیں وہ انہیں شفا دیتے ہیں، تندرستی بخشتے ہیں۔ اور زبور 107 اس کی 20ویں آیت کو اکثر ہم کنونشن کے بڑے بڑے مضمونوں کے ساتھ اسے بیان کرتے ہیں کہ خداوند اپنا کلام نازل فرما کر ان کو شفا دیتا ہے۔ لیکن عزیزو، ہم خداوند کو بھول جاتے ہیں، اور زبور 107 ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب خداوند ہماری مصیبت میں ہمیں نجات دیتا ہے، ہماری مصیبت سے ہمیں رہائی بخشتا ہے، تو ہمیں اس کا اقرار کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی جانیں کہ ہمارا خداوند کتنا عظیم خداوند ہے جو اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ زبور 107 میں وہ 4 بار اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے زبور 6 میں کہتا ہے کہ جب لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کا جی بیٹھ جاتا ہے، وہ بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں، تو خداوند سے فریاد کرتے ہیں۔ لکھا ہے تب اپنی مصیبت میں انہوں نے خداوند سے فریاد کی اور خداوند نے ان کو ان کے دکھوں سے رہائی بخشی، لیکن پھر بھول جاتے ہیں۔ اور زبور میں اس کہتے ہیں کاش لوگ خداوند کی شفقت کی خاطر اور بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں۔ 8ویں آیت۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے ہیں اور جب مشکل میں گرتے ہیں، اور 12ویں آیت میں جب وہ دیکھتے ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہے جو ان کو بچائے، جو ان کی سنے، وہ پھر خدا ان کے سامنے جھکتے ہیں اور اپنی مصیبت میں اسے پکارتے ہیں۔ 13ویں آیت میں اور خداوند ان کو دکھوں سے رہائی بخشتا ہے اور خداوند انہیں اندھیرے اور موت کے سائے سے نکال لاتا ہے، ان کے سارے بندھن توڑ ڈالتا ہے، لیکن پھر وہ خدا ان کو بھول جاتے ہیں۔ اور زبور 20 ایک بار پھر انہیں یاد دلاتا ہے کہ کاش لوگ خدا ان کی شفقت کی خاطر بنی آدم کے لیے اس کے عجائب کی خاطر اس کی ستائش کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
इस बात को दोबारा बयान करता है कि जब दोबारा वो खुदा को भूल जाते हैं, बदी और बदकारी में ज़िंदगी बसर करते हैं और फिर देखते हैं कि वो मौत के फाटकों तक पहुंच जाते हैं, जैसे आजकल हम पहुंचे हुए हैं। तो कहता है कि तब वो फिर अपनी मुसीबत में खुदावंद से दुआ करते हैं और खुदा उन्हें उनके दुखों से उन्हें रिहाई बख्शा, अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उन्हें शिफा देते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। और तीसरी बार आयत 21 में ज़बूर में कहता है, काश लोग खुदावंद की शफ़क़त की खातिर बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते हैं। बस तो खुदावंद इतना मेहरबान है कि हमें मौत के फाटकों से ज़िंदगी अता कर देता है, लेकिन हम फिर जब उसे भूल जाते हैं तो फिर वो अपनी फितरत को, कायनात की कुव्वतों को हमारे बरखलाफ कर देते हैं। लेकिन जब हम हवास पाख्ता हो जाते हैं इन मुसीबतों को देखकर, तो खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है कि हम फिर खुदा से अपनी मुसीबतों में दुआ करते हैं तो वो आंधियों को थमा देता है, लहरों को मौकूफ़ कर देता है और वो खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वो भूल जाते हैं। और चौथी बार जो है 31वीं आयत में कहते हैं, काश लोग खुदा की शफ़क़त की खातिर बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। तो हम देखते हैं कि ज़बूर 107 में ज़बूर नवीस ईमानदारों को कहता है, काश लोग खुदा की शफ़क़त की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सताइश करते। 8वीं आयत में हम देखते हैं, 15वीं आयत में हम देखते हैं, 21वीं आयत में हम देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि 31वीं आयत में 4 दफ़ा। और वो कहता है कि ईमानदारों को ऐसा करना चाहिए कि हमेशा उसे याद रखें, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही हमारी दानाई है और यही हमारी हिकमत है। इसलिए ज़बूर 107 की आखिरी आयत में ज़बूर नवीस कहता है, दाना इन बातों पर तवज्जो करेंगे और वो खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेंगे। तो आज हम अपने आप पर गौर करें, क्या हमारी दानाई यही है कि हम हमेशा खुदावंद को याद रखें, क्योंकि वही हमारी उम्मीद और वही हमारी चट्टान और वही हमारी निजात है। क्योंकि लिखा है कि दाना इन बातों पर तवज्जो करेंगे और वो खुदावंद की शफ़क़त को याद करेंगे। इस वक्त हमारी दानाई और हमारी हिकमत और हमारी समझदारी क्या है? खुदा के पाक कलाम में, इस्तिस्ना की किताब में हम खुदा के पाक कलाम में सीखते हैं कि जब मूसा ने बनी इसराइल को, जो खुदा की चुनी कौम और पहलौठे बेटी की हैसियत से थे, मूसा ने उन्हें यही कहा कि जब तुम खुदावंद के आइन और हुक्मों को मानोगे तो गैर कौमों के सामने तुम्हारी यही अकल और दानिश ठहरेगी। इस दस्ता उसके 4 बाब और उसकी 6 आयत से यूँ है, सो तुम खुदावंद के हुक्मों को, यानी खुदावंद के हुक्मों को मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अकल और दानिश ठहरेगी। और वो इन तमाम आयन को सुनकर कहेंगी कि यकीनन ये बदसूरत कौम नहायत अक्लमंद और दानिशवर है। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नज़दीक हो जैसे खुदावंद हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नज़दीक है। इसीलिए ज़बूर 107 का मुसन्नफ़ कहता है कि दाना खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेंगे, उसकी बातों पर हमेशा गौर करेंगे, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो खुदावंद को जाने और पहचानें। लेकिन जब हम ऐसा नहीं करते तो ज़बूर 107 का मुसन्नफ़ 4 मरतबा ये कहता है, काश काश। तो शायद ये कलाम आज मेरे लिए और आपके लिए कि हम खुदा को भूल जाते हैं और याद नहीं करते। हम जो खुदा के छुड़ाए हुए हैं, हमारी दानिशमंदी और दानाई यही है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसके उस कलाम को जिसके वसीला से हमें शिफा देता है याद रखें और कभी ना भूलें कि जब भी हम अपनी मुसीबतों में दुआ करते हैं वो हमारी सुनते हैं। लेकिन जब हम उसे भूल जाते हैं तो ज़बूर 107 हमें याद दिलाता है कि हमें ऐसा नहीं करना। काश हम खुदा की शफ़क़त की खातिर और गैर कौमों के लिए और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर हमेशा सताइश और उसकी परस्तिश करें। इस बात को याद रखिएगा। और इन दुखों के दिनों में, इन मुश्किलों के दिनों में, परेशानी और फिक्रमंदी के दिनों में और इस
वबा के जो हलाकत है इनके दिनों में, खुदा उनको याद करें। वो हमारी मुसीबतों में हमारी दुआ को सुनेगा, हमें शिफा और तंदुरुस्ती और रिहाई बख्शेगा। लेकिन काश हम इस बात को न भूलें, बल्कि उसे याद रखें कि उसकी शफ़क़त अबदी। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत और सलामती बख्शे। आइए हम खुदा की सिखाई दुआ में शिरकत। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक पाना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज से माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे खुदा उसका फजल, दबात, मोहब्बत और पाक इरफाक और शराकत अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसके नाम में। आमीन।